Namaste learners. We were getting information about present modal auxiliary dare to, and I finished affirmative sentence construction. Means first sentence construction of dare to, next sentence construction negative, and in that video, in the video of affirmative, already I informed you dare to is used mostly in negative and in interrogative forms. Okay. Here we are to learn negative use of dare to. Dare to. So look, which sentence construction? Negative. Negative of dare to. Dare to. Generally, we do not learn these modal auxiliaries when we are the students. Why? Because just we focus. How should we get passing marks, and we pass that examination, but what about the language? So please learn each and every sentence construction here carefully. So it is the class of communication. Okay, in day-to-day language, spoken English, communicative English. So please, negative construction of dare to I am introducing here. First of all, rule. How should be the rule here? First of all, subject, then dare, and after that not. Look, and then to. Dare to, no doubt, but where I am using here not. Dare, not, and then to. Okay, is it clear? Yes, proceed. Which form of verb, my friend? First form of verb, then object, and remaining part of sentence. Okay, what are the uses of dare to? So, dare to indicates courage, adventure, or daring. So, look, now I am taking the help of our mother tongue Marathi and Hindi. Okay, look, I would like to say, त्याच्यामध्ये तुम्हाला विरोध करण्याची हिम्मत नाही किंवा धैर्य नाही, साहस नाही. किंवा हे वाक्य आणखीन कशा पद्धतीने होईल? तो तुम्हाला विरोध करण्याचे साहस करत नाही, धैर्य करत नहीं किंवा हिम्मत करत नहीं. इन हिंदी, उसमें तुम्हें विरोध करने की हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, धैर्य नहीं है. या वो तुम्हें विरोध करने की हिम्मत नहीं करता है, धैर्य नहीं करता है, साहस नहीं करता है. ओके, तो आपने मन ही मन में ये वाक्य बनाना चाहिए. And then tally how do I translate that sentence. तो चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. सब्जेक्ट कैसे मिलता है? सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ who and what. I give detailed information. Subject, verb, object. Please refer those videos. जो subscribers नए हैं, I would like to request them personally. Please, each and every video of spoken English, watch it. You may get the link. Okay, yes. Subject, he. After that, rule पे नजर. Ruled. Dare not. Contraction, daren't. If you want to use contraction, that is daren't. Expansion, dare not. Okay. After that, to. Then verb. विरोध करना. Oppose. Oppose. I think I used cross. This verb in affirmative. You can use cross here, no doubt. Now I am using oppose. Oppose you. Look, he dare not to oppose you, or he daren't to oppose you. अब कुछ बच्चे he can't oppose you ऐसा लेते हैं, या he has not daring to oppose you असं पण घेतात. चालते, लेकिन नए नए वाक्य रचनाएं आपके पास आनी चाहिए. तो ये वाक्य रचना थी डेयर की. मैं
4 ही सेंटेंस लूंगा, एक आप बनाएंगे, एक तो मेरा हो गया। दूसरा सेंटेंस मुझे ऐसा कहना है, पाकिस्तानमध्ये भारतावर सरळ सरळ हल्ला करण्याची हिम्मत नाही, धैर्य नाही, साहस नाही. ओके. किंवा पाकिस्तान भारतावर सरळ सरळ हल्ला करण्याची हिम्मत करत नाही, धैर्य करत नाही, साहस करत नाही. हिंदी में कसं होईल वाक्य, पाकिस्तान में भारत के ऊपर सीधा सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं है, या पाकिस्तान भारत पर सीधा सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं करता है. ओके. साहस नहीं करता है, धैर्य नहीं करता है, यू नो इट. चलो कैसे बनाएंगे सेंटेंस. सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई यूज्ड हियर पाकिस्तान. आफ्टर दैट dare not. आफ्टर दैट टू, हमला करणे, आक्रमण करणे, अटॅक हे शब्द वापरा. अटॅक, अटॅक. ओव्हर इंडिया, सरळ सरळ, सीधा सीधा, खुलेआम असा त्याचा अर्थ घ्या. ओपनली, कुछ बच्चे डायरेक्टली भी ले सकते हैं, ले लो डायरेक्टली. ओके. कैसे हुआ सेंटेंस, पाकिस्तान डेयर नॉट टू अटैक ओवर इंडिया ओपनली या डायरेक्टली. ओके. तो डेयर नॉट टू, इसके ऊपर प्लीज फोकस, बिकॉज दिस इज न्यू सेंटेंस कंस्ट्रक्शन फॉर यू. बाकी वर्ड्स आई एम यूजिंग फैमिलियर हियर. व्हाई? Because generally we do not use these sentence constructions. That's why मैं थोड़े से आसान sentences ले रहा हूँ. ओके. थर्ड सेंटेन्स मला असं म्हणायचं आहे, त्याचा मित्र नृत्य स्पर्धेमध्ये सहभाग घेण्याची हिम्मत करत नाही, साहस करत नाही किंवा धैर्य करत नाही. किंवा त्याच्या मित्रामध्ये नृत्य स्पर्धेमध्ये सहभाग घेण्याची हिम्मत नाही, एवढे करा. हिम्मत करत नाही, साहस करत नाही, ते तुम्ही घेऊ शकता. इन हिंदी, उसके मित्र में नृत्य प्रतियोगिता में सहभाग लेने की हिम्मत नहीं है, या हिम्मत नहीं करता है, साहस नहीं करता है. ओके. यस. कैसे करेंगे. सब्जेक्ट, हु हिज फ्रेंड. आफ्टर दैट डेरंट. नाउ आई एम यूजिंग हियर कॉन्ट्रैक्शन. अब नॉट लेने की जरूरत नहीं है. डेरंट टू या डेयर नॉट टू, सहभाग घेने, हिस्सा लेना, प्रतियोगिता में हिस्सा लेना. यस. पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट इन, कौन सी प्रतियोगिता बोला था मैंने, नृत्य प्रतियोगिता. इन द डांस कंपटीशन, डांस कंपटीशन. ओके. लुक, हिज फ्रेंड daren't to, dare not to participate in the dance competition. ओके. तो हिम्मत नहीं करता है, साहस नहीं करता है, करत नाही मराठीमध्ये, किंवा त्याच्यामध्ये धैर्य नाही, असं जर तुम्हाला इफ यू वांट टू इंडिकेट सच सेंस, तो कौन सी वाक्य रचना है आपके सामने, डेयर टू की. अब चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, या इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी है डेयर टू. मेरी आखरी वाक्य रचना है, आई वुड लाइक टू से, तुमच्यामध्ये त्याच्यासोबत पैज लावण्याची हिम्मत नाही, किंवा तुम्ही त्याच्यासोबत पैज लावण्याची हिम्मत करत नाहीत, धैर्य करत नाही, साहस करत नाही. इन हिंदी, आप उसके साथ शर्त लगाना या बाजी लगाने की हिम्मत नहीं करते हो, या आप में हिम्मत नहीं है. ऐसा ही सेंटेंस है. इट इज माय लास्ट सेंटेंस. ध्यान दीजिए, कुछ अगर कठिनाई आती है तो इट इज माय लास्ट सेंटेंस. ओके. यस. सब्जेक्ट मैंने आप में ऐसा बोला था. यू dare not to और daren't to. You dare not to, शर्त लगाना, पैज लाउने, बेट. कुछ बच्चे वेज भी लेते, आई विल यूज
that verb in the next sentence construction. Bet with him. Bet with him. Okay. You dare not to bet with him. Okay. तो एक सेंटेंस, you are to make of negative of dare to, and please comment me if you get any difficulty. I will help you, but try to make the sentences. Be conscious. Practice makes man perfect. तो आपको प्रैक्टिस करनी ही है मेरे मित्र. ओके, आई विल स्टॉप हियर. थैंक यू.